Yeah, and I think I got one. Let us begin with the first LOS, which is given calculating a bond's price given a market discount rate. So let me take an example जहाँ पे मैं बॉन्ड के सारे पैरामीटर्स पहले लिस्ट डाउन कर देता हूँ. कूपन रेट on the bond is 4%. I hope you understand coupon rate. Coupon rate is what a bond frequently offers you as a cash flow regularly in the form of coupons. ठीक है, यहाँ पे दिया है 4% annually. इसका मतलब every year, once every year, the bond offers you a cash flow of 4% of the face value. Then we have your maturity, which is 5 years. Bond's maturity is nothing but basically it is the time period for which the bond exists. Okay, then you have the market discount rate of 6%. Now let us try and derive some conclusions out of this. So पहले I'll draw it in the form of a diagram, the cash flows that we get from bond. So we'll be getting a cash flow of 4 at the end of first year, 4 at the end of second year, and so on. Okay, so my assumption here is, and throughout the chapter, mostly the assumption that we hold through is that the face value of bond is 100. So 4% of 100 is nothing but 4, correct? Now obviously at the time of maturity, if you look carefully, at the time of maturity we'll be getting the principal also of the bond back, which is 100, plus the interest on the bond, which is 4, correct? तो हमें technically 104 वापस मिलेंगे maturity पे. And when are we trying to find the value of the bond? Today, okay? जो present value है वो इस point पे हम निकाल रहे हैं. So we are basically trying to find the cash flow of the bond, correct? All the cash flows we are trying to pull it back over here. I hope this is clear in the form of a diagram. Now the big question is, when I try to pull back the cash flow of this 4 which is after 1 year back to 0, or 4 which is after 2 years back to 0, or so on, at what discount rate do I pull it back? So that discount rate is nothing but market discount rate. So अगर मैं इसे थोड़े intuitively बोलूं तो market discount rate is the rate of return which is required by the investors that are in the market for a given riskiness of a bond. फिर से बोल देता हूं मैं एक बार. Let us say you are picking a particular risky bond. तो पहली बात तो more is the risk, more will be the expected return by you, not the actual return, the expected return, correct? So if let us say you are picking up this somewhat risky bond as compared to the government securities, so उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिस्काउंट रेट चाहिए होगा वो उस रिस्कीनेस के अकॉर्डिंग चाहिए होगा. तो वो जो मार्केट डिस्काउंट रेट है, वो जो रेट ऑफ रिटर्न है विच यू रिक्वायर एज एन इन्वेस्टर फॉर दैट रिस्की बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट डिस्काउंट रेट, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर रिक्वायर्ड यील्ड. ओके, तो यहां पे हमारा जो बॉन्ड है जिस लेवल की रिस्कीनेस है उसके हिसाब से द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट वी वांट फ्रॉम इट इज 6%. तो हम क्या करेंगे, उसे 6% पे डिस्काउंट कर देंगे. तो वील हैव आवर फर्स्ट कैश फ्लो आफ्टर 1 year, विल डिस्काउंट इट यूजिंग 1 plus 0.06. Why 0.06? Because that is the discount rate. So 1 plus 0.06 raised to 1. Similarly 4 divided by 1 plus 0.06 raised to 2. Okay, एक important thing जो मैं बोलना भूल गया यहाँ पे वो ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि आपको इस चैप्टर को करते समय टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज है, बिकॉज इफ वैसा नहीं है तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे इन कंसेप्ट्स के साथ, एंड यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर्स. एंड इफ यू वांट then mention it in the comments. I'll upload it in a separate link, just the time value of money chapter. Okay, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, 3.774 प्लस 3.560
plus 3.358 plus 77.715 equal to 91.575. Correct? Now what is this? This is the present value of the bond. When I say the present value of the bond, it means that the value at which the bond is trading today in the market. मतलब इस प्राइस पे आप आज जाके बॉन्ड का जो है ये प्राइस पे करके आप बॉन्ड खरीद सकते हैं मार्केट में से. ओके, नाउ लेट अस जस्ट थिंक अबाउट वन क्वेश्चन. जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 91.575 एंड मेरा जो फेस वैल्यू था वो था 100. करेक्ट? face value was equal to 100. So is my bond trading at a premium or is it trading at a discount? तो अगर आपका बॉन्ड जो है ओरिजिनली इट इज प्राइस्ड एट 100, फेस वैल्यू ऑफ 100, एंड इफ इट इज करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 91.575, इसका मतलब है कि इट इज ट्रेडिंग चीपली एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल फेस वैल्यू. तो उस केस में हम बोलते हैं कि द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट. ठीक है? सो द बॉन्ड हियर इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट. लेट मी टेक वन मोर केस एंड उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, प्रीमियम, द कूपन्स एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. ओके, लेट अस से द कूपन रेट नाउ हैज गॉन up to 8% paid annually. Okay, and the market discount rate is same as above, which is 6%. Okay, now we have to calculate the price of our bond. So let us see. जैसे मैंने ऊपर टाइमलाइन बनाया था, मैं पूरा टाइमलाइन नहीं बना के दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स. ओके, सो 8 डिवाइड बाय 1.06 रेज टू 1, 8 बाय 1.06 रेज टू 2 एंड सो ऑन. लास्ट पेमेंट हमेशा हमारा क्या होता है, जो हमारा 8 का जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा, साथ में हमें 100 का हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो हमारा ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था वो भी हमें रिटर्न बैक होना चाहिए. तो 8 प्लस 100 डिवाइड बाय 1.06 रेज टू 5 which is equal to 108.425. करेक्ट? अब मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने पहले पूछा था. इज द बॉन्ड नाउ प्राइस्ड एट डिस्काउंट और प्रीमियम? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, इट इज प्राइस्ड एट अ प्रीमियम. कैसे? बिकॉज दिस टाइम इट इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यू विच इज अबव 100, है ना. नाउ लेट अस टेक दिस थर्ड केस. इजी केस, इसको सॉल्व नहीं कर रहे अपन पूरा का पूरा. थर्ड केस जहां पे हमारा जो फिर से एक 5 ईयर बॉन्ड ले रहा हूं मैं. दिस टाइम इट पेज यू द कूपन रेट ऑफ 6% एनुअल एंड डिस्काउंट रेट सेम ऊपर जैसे 6% है. तो इस बार आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? जस्ट लेट मी पुट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इट विल बी मोर क्लियर. 6 इज आवर कूपन एंड हम डिस्काउंट भी उससे किसे कर रहे हैं? 6 से. तो नेचुरली जो है इफ वी कीप डूइंग दिस थ्रू आउट द टाइमलाइन, हमें इवेंचुअली क्या मिलने वाला है? 100. सो नाउ द बॉन्ड इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ पार वैल्यू. ये तो हो गया मैथ्स. नाउ लेट अस लुक एट कि व्हाट इज द रीजन, इंट्यूटिवली क्यों ये प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है या पार पे है. सो जो मेरा जो सेकंड एग्जांपल था जहां पे मैंने कूपन रेट 8% का लिया है, करेक्ट, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मेरा जो बॉन्ड है वो मुझे जो कूपन पे कर रहा है दैट इज 8% ऑफ द फेस वैल्यू, बट मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सिर्फ 6% है. तो इसका मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मुझे वो बॉन्ड ऑफर कर रहा है. तो अगर ऐसा होगा तो डोंट यू थिंक द बॉन्ड स्टार्ट्स लुकिंग अट्रैक्टिव, बिकॉज वी नीडेड ओनली 6 बट द बॉन्ड इज गिविंग अस 8. So when something becomes attractive, what do? We actually tend to pay a premium price for it because हमें वो चीज attractive लग रही है, हमें वो चीज worth लग रही है more than what it actually should be. So we'll be willing to pay a premium. So when we will be willing to pay a premium, उसकी प्राइस कितनी आई थी हमें यहाँ पे? 108.425. Correct? So that is the concept why it is trading at a premium. Okay? इसी चीज को इन्होंने नेक्स्ट एलओएस में क्या बोल दिया? बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड एंड इट्स पार वैल्यू. दिस सेम थिंग.
आप इसको जितना खींचोगे, जितना स्ट्रेच करोगे, इतना यू विल कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, बट इंट्यूटिवली ये छोटी सी चीज को उन्होंने एक एलओएस बना दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा जो कूपन रेट है, जो फर्स्ट केस में 4 था, करेक्ट, फर्स्ट केस में हमारा कूपन रेट 4 था एंड हमारा मार्केट डिस्काउंट रेट 6 था, तो आवर बॉन्ड वाज प्राइस समवेयर अराउंड 90। एक बार मुझे ऊपर जाके चेक करने दो, 91.575, करेक्ट, यहाँ पे दिख रहा है 91.575। तो द बॉन्ड वाज एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट बैक देन। व्हाई? बिकॉज हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड से कितना है, 6% का है, बट बॉन्ड हमें दे कितना रहा है, 4%। तो ऑब्वियसली द बॉन्ड इज नॉट सो अट्रैक्टिव। व्हेन द बॉन्ड इज नॉट अट्रैक्टिव, नेचुरली वी टेंड टू पे सम लेस अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट। तो उस केस में हम क्या देंगे, 91.575, ओके। एंड थर्ड केस में क्या था कि डिस्काउंट रेट भी 6 था, मिल भी 6 रहा था, तो दोनों केस में द बॉन्ड वाज ट्रेडिंग एट अ पार वैल्यू। नाउ मैथमेटिकली थोड़ा सा एक ट्विस्टेड एग्जांपल लेते हैं, कुछ नया नहीं है सीखने को, यही जो रिलेशनशिप है यही रहेगा, बट एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। सो लेट अस टेक अ सेमी एनुअल बॉन्ड, ठीक है। सेमी एनुअल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, सेमी एनुअल बॉन्ड इज समथिंग विच बेसिकली पेज यू इंटरेस्ट ट्वाइस, ओके। मैं अगेन क्या करता हूं, लेट द कूपन रेट बी 8%। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है यहाँ पे, कि क्वेश्चन में अगर बोला गया कि इट इज अ सेमी एनुअल बॉन्ड एंड यहां पे लिखा है कि द कूपन रेट इज 8%, दिस ऑलवेज इंप्लाइज दैट ये जो कूपन रेट दिया होता है, दिस इज स्टेटेड एनुअली। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू मेक अ मिस्टेक और टू गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम। दिस इज ऑलवेज स्टेटेड एनुअली। व्हेन आई से स्टेटेड एनुअली, व्हाट इट मींस इज कि बस इतना बोल दिया यहाँ पे कि साल का ये 8% दे रहा है, बट द पॉइंट इज इफ आर कूपन इज सेमी एनुअली, टेक्निकली व्हाट इट इज गिविंग अस सम पेमेंट इन एवरी 6 months। बट अगर ये दिया है कि स्टेटेड एनुअली 8%, तो सेमी एनुअली कितना होगा, 4%, विच इज 4 rupees। सो कूपन पेमेंट विल बी ₹4 semi-annually. So maturity of the bond, correct? Now maturity of the bond यहाँ पे जैसे suppose करो हमने लिया है 3 years, but the point is we never think in terms of years. हम लोग हमेशा सोचते हैं in terms of number of periods. Number of periods as in number of payments that are to be made. ठीक है? तो if it is a 3-year bond, but the point is कूपन तो सेमी एनुअली देना पड़ रहा है, तो एक साल में 2 बार देना पड़ रहा है, तो अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 3 years है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे, 6। सो नंबर ऑफ पेमेंट्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज मार्केट डिस्काउंट रेट हमें दिया है क्वेश्चन में, जस्ट बी अ बिट केयरफुल विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पे काफी जगह गलती हो सकती है। मार्केट डिस्काउंट रेट इज गिवन एज 3% पर सेमी एनुअल पीरियड। मैं क्यों इस छोटी छोटी चीजों पे इतना एम्फेसिस डाल रहा हूं, बिकॉज यहीं पे जो है स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। सो व्हेन इट इज रिटन एज 3% पर सेमी एनुअल पीरियड, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी हमें सेमी एनुअल टर्म्स में दिया है, तो इसका ये मतलब है कि वी डू नॉट नीड टू डिवाइड इट बाय 2 एनी फर्दर, ओके। हैड इट बीन गिवन एज 3% स्टेटेड एनुअली, देन हम इसे जरूर डिवाइड करते बाय 2, तो हमारा जो मार्केट डिस्काउंट रेट होता है वो 1.5 हो जाता। बट द पॉइंट इज कि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि इट इज 3% पर सेमी एनुअल पीरियड, तो उस केस में वी डू नॉट डिवाइड इट बाय 2। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अच्छा, उससे पहले कैल्सी में ये बहुत इजी है, मैं कैल्सी में 5 मिनट्स में टुवर्ड्स द एंड या कहीं दिखा दूंगा। अभी हम पहले पेपर पे फंडामेंटली कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। सो अब प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना है हमें, तो लेट अस सी कि व्हाट इट विल बी। सो हमने कितना दिया था, हमारा जो कूपन रेट था दैट वाज 8% स्टेटेड एनुअली। रिपीट करो कोशिश करके, ये 8% स्टेटेड एनुअली, बट बिकॉज बॉन्ड सेमी एनुअल है तो हम 8% को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 4 डिवाइड बाय 1.03।
प्लीज 1.5% मत समझना, बिकॉज मार्केट डिस्काउंट रेट 3% पर सेमी एनुअल पीरियड दिया है, तो उन्होंने ऑलरेडी सेमी एनुअल टर्म्स में ही दिया है, तो हम उसे डिवाइड बाय 2 फर्दर नहीं करेंगे, ठीक है। बॉन्ड कितना है, 3 इयर्स का है, बट द पॉइंट इज कि हमारा बॉन्ड जो है वो स्टेटेड सेमी एनुअली था, तो हर साल 2 बार कूपन मिल रहे हैं, तो 3 इयर्स में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सो वील हैव टू गो टिल 6। कितना आ गया, 105.417। Again, I'll ask you the same question. Is the bond trading at a premium or is it trading at a discount? And what is the reason for same? So, the bond is obviously trading at a price above 100, so it is trading at a premium. But what is the reason of the same? Because हमारा market discount rate in semi-annual terms कितना है, 4%. सॉरी, मार्केट डिस्काउंट रेट इन सेमी एनुअल टर्म्स कितना है, 3%, एंड हमारा कूपन कितना है, 4%। तो हमारा कूपन हमें जो है हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कुछ ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली द बॉन्ड बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर अस बाय नेचर, एंड सो द बॉन्ड स्टार्ट ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। ओके, बट वंस अगेन रिमेंबर द थिंग दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली कोटेड इन एनुअल टर्म्स। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ, अदरवाइज यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड थ्रू आउट। So when we say that the interest rate is usually quoted in annual terms, what it means is कि यहाँ पे जैसे दिया था कि 3% market discount rate semi-annually, correct? Do not expect it to be written like this in the exam. मतलब usually वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे market discount rate आपको 6% दिया रहेगा, सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा कि market discount rate is 6%। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये अजम्पशन है या हमें ये मान के चलना है कि इट इज स्टेटेड एनुअली। इन केस अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो, एंड बिकॉज इट इज स्टेटेड एनुअली बट हमारा बॉन्ड क्या था, सेमी एनुअल, तो हमें इस 6% को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 3% फॉर एवरी पीरियड बिफोर वी एक्चुअली यूज इट फॉर आवर कैलकुलेशंस। ओके, मैंने बता दिया क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड यील्ड भी बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नाम से पता लग रहा है, दिस इज द यील्ड दैट यू कैलकुलेट फॉर अ बॉन्ड व्हेन यू होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है। So just let me first write it down in terms of a bit of English language, क्योंकि उससे हमें वो थोड़ा सा और easy और convenient लग सकता है। So price of bond is equal to the coupon payment which we make, the coupon payment which is made to us, sorry, which we do not make, हम तो investor है bond में, तो हमें coupon receive होगा, divide by 1 plus मार्केट रेट ऑफ रिटर्न रेज टू 1, करेक्ट। मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज है ये चैप्टर करते समय, अदरवाइज ये जो इक्वेशन लिखी है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव स्टडीड दैट चैप्टर प्रायर टू दिस, एंड इफ नॉट आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन द सेम, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। कूपन पेमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस market rate of return raised to 2, correct, and so on जाता जाएगा up till coupon payment plus principal repayment, क्योंकि लास्ट वाली जो पेमेंट होती है उसमें आपका प्रिंसिपल भी रीपे होता है, करेक्ट, डिवाइड बाय 1 प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न रेज टू n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ठीक है। थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, सो विच इज इक्वल टू पीएमटी डिवाइड बाय 1 प्लस आर ले लेते हैं हम लोग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को, रेज टू 1 प्लस पीएमटी डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू 2 प्लस अप टू पीएमटी प्लस द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट विच यू रिडीम एट मैच्योरिटी, करेक्ट, डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू n। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन। नहीं समझा है तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे थे
वो यही इक्वेशन है, बस ये मैथमेटिकली लिखे गए हैं यूजिंग सम वेरिएबल्स टू मेक इट लुक मोर सोफिस्टिकेटेड, नथिंग एल्स। करेक्ट। ये जो आर है हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस सिंगल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑल द डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू डिस्काउंट आर बॉन्ड। तो हम एक ही रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा आर जैसे 6% है, तो फर्स्ट पीरियड के लिए भी मेरा आर 6% है, सेकंड पीरियड के लिए भी मेरा आर 6% है, थर्ड पीरियड के लिए भी, एंड सो ऑन अप टिल एंड मेरा आर कितना है, 6% है। तो ये जो सिंगल रेट ऑफ रिटर्न जो हम यूज कर रहे हैं फॉर डिस्काउंटिंग आर कैश फ्लोज, उस कंसेप्ट को हम YTM बोलते हैं, सिंगल रेट ऑफ रिटर्न वी आर यूजिंग टू डिस्काउंट द बॉन्ड। इसका सिग्निफिकेंस आपको ज्यादा कब समझेगा, जब हम इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट LOS में हम स्पॉट रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल रेट ऑफ रिटर्न यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नाउ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज, हमारे पास बॉन्ड में क्या क्या होता है, एक तो N, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स, करेक्ट। दूसरा हमारे पास होता है पेमेंट, जो कूपन पेमेंट्स हैं हमारे बॉन्ड के, करेक्ट। तीसरा हमारे पास होता है F, which is the face value of the bond। एक होता है हमारे पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, YTM बोल सकते हैं अब हम उसे, सिंगल रेट ऑफ रिटर्न जिससे हम बॉन्ड को डिस्काउंट करते हैं, है ना। एंड लास्ट जो है वो क्या है हमारा PV, द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडिंग टुडे, करेक्ट। नाउ लेट अस थिंक दैट हमें नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द बॉन्ड तो पता है, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पता है, यूजुअली जो 100 लेते हैं, एंड लेट अस से कि हमें कूपन पेमेंट ऑफ द बॉन्ड दिया है। ठीक है, तो हमें ये तीन वेरिएबल्स नोन है। तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज नोन, व्हेन आई से द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इसका मतलब the price at which the bond is trading in the market today, correct। तो if that price is known to us, then ये जो इक्वेशन है इसमें हमें PMT पता है, इसमें हमें हमारा N पता है, इसमें हमें हमारा PV पता है, इसमें हमें FV पता है, तो क्या बच गया, सिर्फ R, करेक्ट। तो बोल रहा है कि अगर हमें मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड पता है, तो ये जो अबव इक्वेशन है इसमें हम R फाइंड कर सकते हैं, एंड R इज नथिंग बट इट इज द YTM। YTM को हम लोग मैंने क्या डिफाइन किया, इट इज अ सिंगल यूनिफॉर्म रेट सच दैट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज व्हेन दे आर डिस्काउंटेड यूजिंग दैट सिंगल रेट, देन द प्रेजेंट वैल्यू का सम इज बेसिकली इक्वल टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट विच इट इज ट्रेडिंग टुडे इन द मार्केट। मैं इसको एक बार फिर से दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर मुझे ऑलरेडी बॉन्ड का PV दिया है, ठीक है, लेटस से मुझे दिया है कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 110, लेटस से मुझे दिया है कि बॉन्ड का जो पेमेंट है, जो कूपन पेमेंट है, दैट इज 6%, ओके, एंड बॉन्ड का FV 100 है, एंड लेटस से इट इज अ 4-year एनुअल बॉन्ड, तो N इज इक्वल टू 4 है, ये सब मुझे दिया है। तो बिकॉज ऑल दिस इज गिवन टू अस, so we can find an R for the bond, that is a YTM for the bond। दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूं तो given the market price of the bond, we are actually able to find the YTM of the bond, that is the YTM is implied from the market, correct। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा है बॉन्ड का, it implies to us the YTM of the bond, या फिर तो required rate of return of the bond। तो YTM को हम लोग इम्प्लाइड मार्केट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है क्या हमें कि मैं इम्प्लाइड वर्ड की यूज कर रहा हूं, बिकॉज बॉन्ड का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, ऑटोमेटिकली दैट फैक्टर्स इन कि उसका R कितना होगा। तो अगर मेरा बॉन्ड का PV अगर 130 होगा, तो डेफिनेटली माय R हैज टू बी समथिंग रियली लेस। जितने कम रेट से डिस्काउंट करोगे उतना आपका PV ज्यादा आएगा, जितने कम रेट से आप डिस्काउंट करोगे आपकी पेमेंट्स को, उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, करेक्ट। तो जैसे जैसे आपका PV फ्लक्चुएट होगा, उस हिसाब से आपका डिस्काउंट रेट फ्लक्चुएट होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज द इम्प्लाइड मार्केट डिस्काउंट। समझ गया YTM क्या होता है, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन टू द सम्स, एक अजम्पशंस देख लेते हैं हम YTM के।
तो व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ YTM? वन इज, मैंने आपको बोला YTM इज यील्ड टू मैच्योरिटी, सो नाम में ही छुपा हुआ है कि इन्वेस्टर होल्ड्स द बॉन्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो हमारा अजम्पशन है कि हम बॉन्ड को बीच में सेल नहीं कर रहे हैं बट मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं। सेकंड क्या है, ये अजम्पशन बाय डिफॉल्ट हम हमेशा लेते ही है, ठीक है, टू मेक द थिंग्स सिंपल फॉर अस, दैट इज वी आर अज्यूमिंग कि जो हमारा बॉन्ड का इशुअर है जिसने हमें ये बॉन्ड दिया है वो सारे के सारे कूपन एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स फुल अमाउंट में सारे स्केड्यूल्ड डेट्स पे कर रहा है। दैट इज इन अदर वर्ड्स वी आर मेकिंग एन अजम्पशन कि किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्या है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ कूपन पेमेंट्स इज डन एट दैट सेम यील्ड। आई थिंक हमें इसको रिजर्व रखना चाहिए। वील कीप दिस टिल द कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर बिकॉज कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये ज्यादा बेटर तरीके से कवर किया गया है। अगर एक बार आप वहां कर लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, एंड उस बैकग्राउंड के बिना अगर मैं ट्राई करूंगा तो शायद थोड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। सो जस्ट लेट अस कीप इट एट द स्टैंड बाय फॉर नाउ। एक सम ले लेता हूं मैं, मतलब हमने जो पहले किया है वही करना है यहाँ पे। सो लेट अस से दैट सम ले रहा हूं मैं, we own a 3-year bond, 2.5% semi-annual coupon payment bond है, ठीक है। 2.5% semi-annual coupon payment bond having par value 100 million, okay. Now the bond is currently priced at, that is the PV of the bond is JPY में दिया है basically 98,175,677, okay. Now हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉन्ड का PV दिया हुआ है, हमें बॉन्ड की पार वैल्यू दी है, हमें बॉन्ड का मेच्योरिटी एन दिया है और हमें जो है बॉन्ड का कूपन रेट दिया है। क्या मिसिंग है हमारे पास, सिर्फ बॉन्ड का YTM दैट इज द इम्प्लाइड मार्केट डिस्काउंट रेट मिसिंग है, एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर दैट। नाउ लेट अस लुक एट हाउ विल वी सॉल्व फॉर दैट ऑन पेपर। एक बार यहां समझ गया, कैलसी पे 2 मिनट का भी काम नहीं है, बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा FV मिलियन में दिया है तो मैं ये जो वैल्यू है PV को उसको भी मैं मिलियन में कन्वर्ट कर लेता हूं, काफी सिंपल हो जाएगा, 98.1756, ठीक है। यील्ड क्या दी थी, 2.5% सेमी एनुअल कूपन पेमेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था यील्ड हमेशा एनुअल टर्म्स में लिखी रहती है, क्वेश्चन में हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं। तो बॉन्ड हमारा सेमी एनुअल कूपन पेमेंट बॉन्ड है, बट हमारी जो यील्ड है वो 2.5% अगर मेंशन है तो इट इज स्टेटेड एनुअली। अब हमें उसे सेमी एनुअल में लेके जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2.5% को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा हमें, बिकॉज आवर बॉन्ड इज सेमी एनुअल। तो 1.25 हमारा कैश फ्लो आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस YTM, या फिर इधर R भी लिख सकते हो, रेज टू 1 प्लस 1.25 डिवाइड बाय 1 प्लस YTM रेज टू 2, एंड सो ऑन। हम कहां तक करेंगे, हमारा बॉन्ड जो है वो 3 ईयर बॉन्ड है, बट सेमी एनुअल है तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 6, एंड लास्ट में हमें बॉन्ड का फेस वैल्यू भी मिलेगा रिडेम्पशन पे, तो 100 प्लस 1.25 डिवाइड बाय 1 प्लस YTM रेज टू 6, करेक्ट। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि लेटेस्ट से कि यहां पे लिखा होता है 2.5% क्वार्टरली कूपन पेइंग बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि एनुअल टर्म स्टेटेड 2.5% है हमारा कूपन पेमेंट, बट द पॉइंट इज इट इज गिवन एज क्वार्टरली कूपन पेमेंट बॉन्ड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है उसके लिए, 2.5 डिवाइड बाय 4 करते हैं हम, सो दैट इज फॉर द क्वार्टरली। सो व्हेन वी सॉल्व फॉर दिस, ठीक है, तो हमें हमारा जो R आने वाला है, कैलसी में जो हमारा R आएगा वो आएगा 1.751%, ओके। द पॉइंट इज कि ये जो R हमें फिर से मिला है ये एक्चुअली सेमी एनुअल टर्म्स में है, तो हमें इसे एनुअलाइज करना पड़ता है, बिकॉज क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी होंगी वो अगेन एनुअलाइज टर्म्स में दी होंगी। तो एनुअलाइज करने के लिए हम सिंपल इसे क्या करेंगे, 1.751 into 2 which is equal to 3.142%। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सेम कंसेप्ट को क्या करूंगा, आपको
कैल्सी में पूरा पुट इन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली किया क्या है मैंने, ठीक है। What is the reason for the bond trading at a discount? Because अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो एनुअलाइज्ड जो YTM है वो 3.142% है, बट इसकी जो एनुअलाइज्ड कूपन पेमेंट है वो कितनी 2.5% है। तो एक्चुअली जो हमारा जो कूपन है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, सो दैट इज द रीजन व्हाई द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। ओके, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को कैल्सी में बताऊंगा एंड हम नेक्स्ट LOS भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कूल, बाय बाय।